Hi everyone, in this video I show you different way to access safe mode in Windows 11. With the help of safe mode you can troubleshoot your Windows computer. There are so many options that are available in the safe mode. First option is reset this PC. Second is system restore point. Third, system image recovery. Fourth, startup repair. Fifth, uninstall updates. Sixth, command prompt. And so many options that are available in the safe mode. First method is hold the shift key from the keyboard, click on the Windows logo button, then click on the power button, then click on restart. Release the shift key from the keyboard and wait for the some time to access the safe mode in your screen. Now you can see three options are there: exit and continue to Windows 11, troubleshoot, reset your PC and see advanced option, and turn off your PC. With the help of first option you can restart your machine and Windows 11 will be started. With the help of second option you can troubleshoot your system. With the help of third option you can turn off your machine. Now just click on the second option, that is troubleshoot. Now you can see two options are available: reset this PC and advanced option. With the help of reset this PC you can reinstall the operating system without any media connected to the system. With the help of second option, that is advanced option, you can see the multiple methods. Now just click on the advanced option. Now you can see there are 6 methods. First one is the startup repair. With the help of startup repair, if your any file is corrupted in your machine, it will repair automatically. Second option is startup settings. If there is any startup issue in your Windows, you can use this option. Third method is command prompt. With the help of command prompt, you can run the multiple commands, like you can rename the file for the password reset. Fourth option is uninstall updates. With the help of uninstall updates, you can remove the unnecessary updates in Windows. Fifth option is system restore. With the help of system restore, you can restore your computer where your system is properly working. And the last option is system image recovery. If you are already taken the Windows image backup or Windows backup, you can restore your Windows. Now just click on the back button. Again click on back button. Now we just continue with the Windows 11 option. This is the first method to access the safe mode. अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड का यूज करके आप सेफ मोड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है आपका कमांड। आप कमांड का यूज करके सेफ मोड को ओपन कर सकते हैं। कमांड के लिए आपको ओपन करना होगा रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से विंडोज की के साथ आर बटन। तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको कमांड रन करनी है, शट डाउन स्पेस /o स्पेस /r स्पेस /t। देन आपको टाइम यहाँ पर मेंशन करना है कि आप कितने समय के बाद सेफ मोड को ओपन करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर 5 लिखते हैं, दैट मीन्स आप 5 सेकेंड के बाद सेफ मोड को ओपन करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर 60 टाइप करेंगे तो 1 मिनट के बाद आपका सेफ मोड ओपन हो जाएगा। अगर आपको इंस्टेंट सेफ मोड को ओपन करना है तो आप टाइप करेंगे 0, देन आपको क्लिक करना है ओके पर। तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने ओपन हो जाएगा सेफ मोड। तो आपके सामने यहाँ पर सेफ मोड ओपन हो गया।
यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ करके आप सेफ मोड से एग्जिट करके विंडोज़ 11 को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन का यूज़ करके आप ट्रबल शूट या रीसेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। थर्ड ऑप्शन से आप टर्न ऑफ कर सकते हैं अपने पीसी को। अभी मुझे यूज़ करना है ट्रबल शूट का, तो मैं क्लिक करूँगा सेकंड ऑप्शन पर, दैट इज़ ट्रबल शूट। क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, रीसेट दिस पीसी एंड एडवांस ऑप्शन। रीसेट दिस पीसी ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने सिस्टम में अपनी फाइल्स को सेव भी कर सकते हैं और उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप अपने सिस्टम में विंडोज़ को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। इस रीइंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको किसी भी डीवीडी, पेन ड्राइव या किसी भी बूटेबल मीडिया का या डीवीडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंडोज़ इंटरनली ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी और जितने भी आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे वो सभी हो जाएंगे अनइंस्टॉल। सेकंड ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन। तो अभी मैं जाऊंगा एडवांस ऑप्शंस में। एडवांस ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिलेंगे 6 ऑप्शंस। अगर आपके सिस्टम में एक जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये ऑप्शन ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल है सिर्फ 6 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्टअप रिपेयर। अगर आपके सिस्टम में विंडोज स्टार्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को हील करके अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे ठीक कर लेगा। सेकंड ऑप्शन है स्टार्टअप सेटिंग्स। अगर आपके सिस्टम में कोई स्टार्टअप सेटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इस ऑप्शन का। थर्ड ऑप्शन है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप अपने सिस्टम में कमांड्स को रन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड रीसेट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट तब भी हम इसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अनइंस्टॉल अपडेट्स। आप इस ऑप्शन का यूज़ करके अपने सिस्टम से रिसेंटली इंस्टॉल्ड अपडेट्स को रिमूव कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है रिस्टोर पॉइंट। रिस्टोर पॉइंट का यूज़ करके आप अपने सिस्टम को प्रीवियस रनिंग सिस्टम में लेके जा सकते हैं। अगर आपने अपने सिस्टम में रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया हुआ है तभी ये ऑप्शन आपका वर्क करेगा। सिक्स्थ ऑप्शन है सिस्टम इमेज रिकवरी। अगर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लिया हुआ है तब हम इस सिस्टम इमेज रिकवरी का यूज़ करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं। तो ये थे आपका 6 ऑप्शंस जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब मैं इसे यहाँ से करता हूँ बैक, अगेन इसे करते हैं बैक और कंटिन्यू करते हैं विंडोज़ 11। ये था आपका सेकंड मेथड सेफ मोड को एक्सेस करने का। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड के लिए आपको ओपन करना है रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ms config। देन आप क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे तो आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का ये पेज ओपन होगा। आपको जाना है बूट टैब में और यहाँ पर आपको मिलेगा बूट ऑप्शंस में सेफ बूट। तो हम क्लिक करते हैं सेफ बूट पर। यहाँ पर आपको मिलते हैं ये डिफरेंट मेथड्स, मिनिमल, अल्टरनेट शेल, एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर एंड नेटवर्क। पहले मैं इसे ओपन करता हूँ मिनिमल में, ओके पे क्लिक किया। देन हम इसे करते हैं यहाँ से रीस्टार्ट। तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम है ये आपके यूज़र से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा सेफ मोड लिखा हुआ, यानी कि ये सिस्टम आपका सेफ मोड में लॉगिन हो चुका है। इस सेफ मोड में आपके सिर्फ 3 ड्राइवर्स ही लोड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कीबोर्ड का ड्राइवर, सेकंड माउस का ड्राइवर एंड थर्ड इज़ VGA ड्राइवर। अगर इसके अलावा आपने अपने सिस्टम में ग्राफिक्स के ड्राइवर, साउंड के ड्राइवर, लैंड ड्राइवर्स, ये सभी यहाँ पर लोड नहीं होते। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन ही मिलेंगे यूज़ करने के लिए।
अगर आपने यहाँ से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो वापस आपका यही स्क्रीन फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे नॉर्मल मोड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर से प्रेस करना है विंडो प्लस आर और यहाँ पे आप टाइप करेंगे ms config, ओके पे क्लिक किया। बूट में जाके आपको इस ऑप्शन को करना होगा अनचेक। जैसे आप इसे अनचेक करके ओके पे क्लिक करेंगे, सिस्टम आपका फिर से रीस्टार्ट होगा और वो सिस्टम आपका नॉर्मल मोड के अंदर लॉगिन होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन में जो कि है अल्टरनेट शेल। क्लिक करते हैं अल्टरनेट शेल ऑप्शन पे, देन इसे करते हैं ओके, देन रीस्टार्ट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट से आप सिर्फ ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली कमांड्स। ये था आपका अल्टरनेट शेल। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं वापस ms config, एंटर किया। देन आपको जाना है बूट टैब में। अब हम यूज़ करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर मोड। तो इसे मैं करता हूँ यहाँ से ओके और आपको इसका इफ़ेक्ट दिखा देता हूँ कि इसका आपके सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट होगा। ओके पे क्लिक किया। अगेन आपको करना होगा इसे रीस्टार्ट। तो ये आपका ओपन हो गया एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर मोड में, जो कि है आपका सेफ मोड में। यहाँ पे आपके लैन के ड्राइवर्स भी अवेलेबल हैं, कीबोर्ड के ड्राइवर और माउस के ड्राइवर, ग्राफिक्स के ड्राइवर और सभी ड्राइवर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ से भी जो भी आप ट्रबल शूटिंग करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर से ओपन करेंगे रन डायलॉग बॉक्स, टाइप करेंगे ms config, देन ओके। बूट टैब में चलते हैं। अब हम क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन में और करेंगे इसे ओके, देन रीस्टार्ट। तो यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो नेटवर्क के अंदर लॉगिन हो गया। इस नेटवर्क के अंदर आपके 4 ड्राइवर्स लोड होंगे। फर्स्ट है आपका कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड VGA एंड फोर्थ लैन कार्ड। तो इस केस में आपका लैन कार्ड के ड्राइवर भी लोड होंगे क्योंकि आपने इसे नेटवर्क में स्टार्ट किया। वेरीफाई करने के लिए आप विंडो प्लस आर टाइप करिए ncpa.cpl और यहाँ पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं आपका लैन कार्ड भी अवेलेबल है। और आप डबल क्लिक करके डिटेल में जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके ऊपर नेट अवेलेबल है। ठीक है, और मैं आपको कमांड से भी वेरीफाई करा देता हूँ। तो टाइप करते हैं cmd, पिंग कर लेते हैं fb.com को। तो फेसबुक पिंग दे रहे हैं, यानी कि आपका इस ऑप्शन में इंटरनेट अवेलेबल है। फिर से यहाँ पे टाइप करते हैं ms config, देन आपको जाना है बूट टैब में। तो ये थे आपके बूट ऑप्शन में 4 मेथड्स। अब हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे अपने नॉर्मल मोड में। नॉर्मल मोड में स्टार्ट करने के लिए आपको इसे करना है अनचेक, देन ओके, देन रीस्टार्ट। ये था आपका थर्ड मेथड सेफ मोड को एक्सेस करने का। अभी आपने 3 मेथड्स देखे विंडोज़ 11 में सेफ मोड को ओपन करने के। इन तीनों मेथड्स में मैंने पहले सिस्टम को लॉगिन किया, उसके बाद ही मैं सेफ मोड को ओपन कर पाया। लेकिन अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ 11 लॉगिन ही नहीं हो रहा, यानी कि विंडोज़ स्टार्ट ही नहीं हो रही, देन आप कैसे सेफ मोड को एक्सेस करेंगे? वो है आपका फोर्थ मेथड। तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम को बूट करवाना होगा विंडोज़ 11 की डीवीडी के साथ। तो मेरे सिस्टम में यहाँ पर विंडोज़ की डीवीडी अवेलेबल है। अगर आपके पास डीवीडी अवेलेबल नहीं है तो आप विंडोज़ 11 को अपनी पेन ड्राइव में रख कर भी बूट करवा सकते हैं। तो अभी मेरे पास डीवीडी अवेलेबल है, तो मैं डीवीडी से बताऊंगा कि आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं सेफ मोड को। तो उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे सिस्टम को रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से डेल एंड F2 की को प्रेस करना है ताकि आपके सिस्टम में बायोस एक्सेस हो जाए।
क्योंकि जब बायोस एक्सेस होगा तभी आप अपने सिस्टम में डीवीडी से या पेन ड्राइव से बूट करवा पाएंगे। देन आपको जाना है बूट टैब में। अभी मेरे पास डीवीडी अवेलेबल है तो मैं सी ड्रोम को कर दूंगा टॉप पर, सेकंड पे रखेंगे हार्ड ड्राइव को। देन आपको करना है एग्जिट। एग्जिट के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, एग्जिट सेव चेंजेस, एंटर किया, देन यस। आपको यहाँ पर कोई भी की को प्रेस करना है तो आपका सिस्टम आपके बूटेबल मीडिया से बूट हो जाएगा। बूट होने के बाद आपको ये विंडोज़ का इंस्टॉलेशन स्क्रीन नज़र आएगा। आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको जाना है रिपेयर योर कंप्यूटर ऑप्शन पर, तो क्लिक किया तो सेम सेफ मोड यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे ट्रबल शूट ऑप्शन पे। देन आपके सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। स्टार्टअप रिपेयर, कमांड प्रॉम्प्ट, अनइंस्टॉल अपडेट्स, सिस्टम रिस्टोर एंड सिस्टम इमेज रिकवरी। तो ये ऑप्शंस वो ऑप्शंस हैं जो आपके डीवीडी से पॉसिबल हो सकते हैं। जब आपने फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड का यूज़ किया था तब आपके पास यहाँ पर 6 ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन डीवीडी से सिर्फ ये 5 ऑप्शंस ही आप कर सकते हैं, इसलिए आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसे मैं करता हूँ यहाँ से बैक, कंटिन्यू करते हैं विंडोज़ 11 के साथ। अगर आपने सिस्टम में पेन ड्राइव लगाई है तो आपको पेन ड्राइव को रिमूव करना होगा। अगर आपने डीवीडी है तो आपको यहाँ पर किसी भी की को प्रेस नहीं करना, अदरवाइज आपका सिस्टम जो होगा वो फिर से डीवीडी से बूट हो जाएगा। ये था आपका फोर्थ मेथड सेफ मोड को एक्सेस करने का। तो आप इन मेथड्स का यूज़ करके अपने सिस्टम में सेफ मोड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल F8 की से अपने सिस्टम में सेफ मोड को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम की बूट मेन्यू पॉलिसी को चेंज करना होगा। ये बूट मेन्यू पॉलिसी आपकी विंडोज़ 8 से एप्लीकेबल है। विंडोज़ 7 तक आप सिर्फ सिस्टम को रीस्टार्ट करके F8 की को प्रेस करके सेफ मोड को ओपन कर सकते थे, लेकिन विंडोज़ 8 से आपका ये ऑप्शन डिसेबल हो गया है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो आपको अपने सिस्टम से कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक करना है विंडोज़ की ऑप्शन पर। देन आप यहाँ पर सर्च करेंगे CMD। आपको इसे ओपन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपके सामने एक कंसेंट बॉक्स ओपन होगा, आप इसे करेंगे यस। तो आपके सामने डॉस प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कमांड रन करनी है, बट मैं इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप कमांड को आसानी से देख पाएँ कि मैंने यहाँ पर क्या कमांड रन की है। तो कमांड बिल्कुल ही सिंपल है। कमांड है आपकी bcd edit /set default boot menu policy स्पेस लीगेसी। देन आपको एंटर करना है। तो अब आपका सिस्टम सिंगल F8 की से सेफ मोड में एंटर कर जाएगा, बट उसके लिए आपको अपने सिस्टम से डीवीडी को रिमूव करना होगा, क्योंकि जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करके F8 की को प्रेस करेंगे तो वो आपकी डीवीडी से बूट हो जाएगा। तो अभी मैं इसे VMware में कर रहा हूँ तो मैं अपनी डीवीडी को रिमूव कर देता हूँ। अगर आप भी इसे सीखने के लिए VMware का यूज़ कर रहे हैं तो आप भी देख लीजिए कि आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको विंडोज़ 11 पर करना है राइट क्लिक, देन सेटिंग्स। देन आप डीवीडी पर जाके इन दोनों ऑप्शंस को कर देंगे अनचेक, देन ओके।
तो आपकी डीवीडी आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएगी। देन आपको करना है इसे रीस्टार्ट। आप ग्राफिकली भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कमांड से इसे रीस्टार्ट कर देता हूँ। शट डाउन -R -T स्पेस 0, देन एंटर। देन आपको अपने कीबोर्ड से F8 की को प्रेस करना है। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन ओपन हुआ है एडवांस बूट ऑप्शंस का, ऐसा स्क्रीन आपको विंडोज 7 में डिफ़ॉल्ट मिलता था F8 से। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है रिपेयर योर कंप्यूटर, इस ऑप्शन पे अगर आपने एंटर किया तो आपको मिलेगा सेम सेफ मोड विंडोज 11 का। तो मैं इसे कर देता हूँ एंटर। तो आपके सामने सेम सेफ मोड ओपन हो गया। रिमेनिंग ऑप्शंस आपके सेम हैं, तो मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ विंडोज 11 के साथ और अगेन प्रेस करूँगा F8 की। तो आपके सामने फिर से सेम स्क्रीन ओपन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास सेफ मोड का। ये सेफ मोड है आपका ग्राफिकल वाला, जिसके अंदर आपको VGA कीबोर्ड और माउस के ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको अपने सिस्टम को सेफ मोड में ग्राफिकली लॉगिन करना है तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इस ऑप्शन को आप उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सिस्टम नॉर्मल मोड में स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो आपका सेफ मोड में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस मोड में अगर आपने अपने सिस्टम में कोई मिसमैच ड्राइवर को इंस्टॉल किया है तो वो आपका लोड नहीं होगा और आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेफ मोड विद नेटवर्किंग। ये मोड आपका सेम सेफ मोड की तरह ही है, लेकिन इसमें आपके लैन कार्ड के ड्राइवर्स भी लोड हो जाएंगे और आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट। इस मोड में आपका सिस्टम स्टार्ट होगा कमांड प्रॉम्प्ट के साथ, यानी कि आप सिर्फ कमांड को रन करके अपने सिस्टम में ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल बूट लॉगिंग का। अगर आप अपने सिस्टम को इस मोड में एंटर करते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके सिस्टम के अंदर एक ntbtlog.txt नाम की फाइल को क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर आपके सिस्टम के स्टार्टअप के सारे ड्राइवर्स की लिस्ट अवेलेबल होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है लो रेजोल्यूशन वीडियो का। अगर आप अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन अपने स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तो आपका सिस्टम जब स्टार्ट होगा तो आपको सिस्टम पर स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप लो रेजोल्यूशन वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सिस्टम पे आपको डिस्प्ले नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डीबगिंग का। अगर आप इस ऑप्शन में अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो आपका जो कर्नल है वो रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबल ऑटोमेटिक रीस्टार्ट ऑन सिस्टम फेलियर। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे अपने सिस्टम में, तो अगर बाय चांस आपका सिस्टम किसी भी कारण से रीस्टार्ट हो गया तो सिस्टम आपका वहीं पर ही अवेलेबल रहेगा, दोबारा से लॉगिन नहीं करेगा। तो हम इस ऑप्शन का यूज़ ज़्यादातर नहीं करते, क्योंकि बाय चांस अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई और आपका सिस्टम बाय चांस रीस्टार्ट हो गया तो वो वहीं पर ही स्टिल रहेगा जब तक आप उसे रीस्टार्ट नहीं करते मैन्युअली। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट। तो इस कंडीशन में अगर आपने अपने सिस्टम में कोई भी डिजिटली अनसाइंड ड्राइवर को लोड किया होगा तो वो उसे कर देगा डिसेबल। नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबल अर्ली लॉन्च एंटी मालवेयर ड्राइवर। अगर आपने सिस्टम में एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो ये उसे कर देगा डिसेबल। लास्ट ऑप्शन है स्टार्टअप विंडोज़ नॉर्मली। अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आपकी विंडोज़ नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी। हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं नॉर्मली।
जो अभी आपने देखा F8 से आपने सेफ मोड को एक्सेस किया, ये बहुत ज़रूरी है आपके सिस्टम में इसे करना, क्योंकि कई बार आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपको सेफ मोड में एंटर होना होता है। तो एंटर करने के लिए आपको डीवीडी चाहिए, हो सकता है आपके पास उस टाइम पे डीवीडी अवेलेबल ना हो, और जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस थे उसके लिए आपके पास सिस्टम का लॉगिन होना ज़रूरी है। तो अगर लॉगिन नहीं होगा तो वो 3 ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में अगर आपने F8 को इनेबल करके रखा होगा तो आप इजीली सेफ मोड में एंटर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको वापस अपने सिस्टम को लीगेसी मोड से डिसेबल करना तो उसके लिए आपको फिर से कमांड रन करनी होगी। तो उसके लिए अगेन आप ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर। कंसेंट ओपन होगा, आप इसे करेंगे यस। आपको यहाँ पर फिर से कमांड रन करनी है bcd edit /set default boot menu policy standard। इस कमांड के रन होने के बाद आप अपने सिस्टम में वैसे ही सेफ मोड को एक्सेस कर पाएंगे जो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, यानी कि आपको होल्ड करके रखना होगा शिफ्ट की को, तभी आप अपने सिस्टम में सेफ मोड को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये थे आपके 4 मेथड्स सेफ मोड को एक्सेस करने के। एक मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी कि आप लीगेसी ऑप्शंस को अपने सिस्टम में कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। दैट्स इट्स फॉर द टुडे सेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।